हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेब एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, একটা দুদিন ধরেই কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চলছে এবং অনেকে হয়তো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে দেখেছেন যে এসএসসি প্রোটেস্ট নিয়ে কিন্তু যন্তর মন্তরে অর্থাৎ দিল্লিতে কিন্তু আন্দোলন চলছে এবং সেখানে নট অনলি ফর শুধুমাত্র যে স্টুডেন্ট যারা এসএসসি এক্সাম দেয় তারা এটা নয়, এখানে নামি নামি যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা রয়েছেন সেখানে অভিনয় স্যারের মতো, নিতু ম্যামের মতো বা আরও হিমাংশী ম্যাম, সমস্ত ডিপার্টমেন্ট বা সমস্ত ইউটিউব চ্যানেল বড় বড় যারা বিভিন্ন পেশাতে যুক্ত, শুধুমাত্র যে শিক্ষকতার পেশা করেন সেটা নয়, বিভিন্ন বড় বড় চাকরিতে কেউ সিজিএল, কেউ সিএইচএসএল বা আরও আদার্স কোনো বড় বড় পোস্টে ওনারা যুক্ত আছেন, তারাও কিন্তু ছাত্রদের হয়ে প্রোটেস্টে নেমেছে এই এসএসসি প্রোটেস্টের জন্য। যেখানে টিসিএস ছাড়া অন্য একটা কোনো সংস্থাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত এসএসসির এক্সামগুলো কন্ডাক্ট হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন নিজের স্টেটে এক্সাম না হয়ে আদার্স স্টেটে এক্সামের জন্য যে সিট পরিবর্তন বা বিভিন্ন ভেন্ডার সংক্রান্ত নানান সমস্যা একটার পর একটা দেখা দিয়েছে, যার ভিত্তিতে স্টুডেন্টদের সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা মহাশয়রা। এবং আমার আজকে ভিডিওটা করার একটা উদ্দেশ্য যে যেখানে রাজ্যে এতদিন ধরে আমাদের রাজ্যে ওবিসি মামলা যেটা চলছিল এতদিন পর্যন্ত, সেটা নিয়ে আজ অর্থাৎ দুদিন আগে কিন্তু 28 তারিখে কিন্তু এসএসসি নিয়ে আর কোনো সেরকম বাধা নেই। সেখানে ডাব্লিউপির মতো এক্সাম বা এসএলএসটি যে এক্সাম সেটা হচ্ছে, সাথে সাথে পিএসসির এক্সাম এখনও পর্যন্ত নোটিফিকেশান আসেনি। প্রাইমারি শিক্ষকতার যে চাকরি 2022 স্টেট ইন্টারভিউ নোটিশ সেটাও কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসেনি। সাথে সাথে আপার প্রাইমারি যে টেট হওয়ার কথা সেটাও কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসেনি। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া কিন্তু দুর্গাপূজার জন্য 1,10,000 টাকা, যেটা হয়তো এর আগে যে টাকার পরিমাণ ছিল তার থেকে কিন্তু অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তো এখান থেকে দাঁড়িয়ে একটাই প্রশ্ন, তাহলে বাংলার যে সমস্ত আমাদের হয়তো ছোটো চ্যানেল কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা মহাশয় রয়েছেন তারা কেন এই ছাত্রদের সাথে নেই? কারণ যেখানে একটা শিক্ষা একটা এমন মেরুদণ্ড যেটা রাজ্যের তথা দেশের তথা সারা বিশ্বের মধ্যে একটা সবথেকে বড় এবং সমাজ গড়ার কারিগর, যেখানে শিক্ষকরা পথে নামছে ছাত্রছাত্রীদের হয়ে, যেখানে তারা লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে পুলিশের নানান মতো যে নির্যাতিতার মতো অধিকার যে কাজ সেগুলো কিন্তু পুলিশ করে চলেছে, সেটাতে তাদের কাজ তারা করছে। কিন্তু এখানে যে শিক্ষক শিক্ষিকারা যে পাশে রয়েছে সেটাই কিন্তু বড় খবর। তো এই থেকে কিন্তু একটা বিষয় জানা দরকার যে আমাদের বাংলার শিক্ষক শিক্ষিকারা কবে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকবে। এবং এখানে শুধুমাত্র যে এসএসসির জন্যই করা হচ্ছে সেটা নয়, সমস্ত বিভাগের জন্য এই বিষয়টা নিয়ে অবগত হওয়া দরকার। কারণ রাজ্যে তথা দেশে যে বেকারত্বের পরিমাণ সেটা দিন দিন বাড়ছে, পড়াশোনার প্রতি যে একটা মানুষের অনীহা, অভিভাবকদের যে একটা অনীহা সেটা কিন্তু দিনের পর দিন কিন্তু দেখা যাচ্ছে। তো আমরা কিন্তু ডিটেলস ভিডিওর মধ্যে দিয়ে দেখব যে কীভাবে এই প্রোটেস্টটা হয়েছে। তো অবশ্যই ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখবেন সকলে যারা দেখছেন, আর ভিডিওটি লাইক শেয়ার যতটা পারবেন করবেন, কারণ এইভাবে আর দিন দিন চলতে পারে না। রাজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের জন্য কিন্তু এই বিষয়টা হওয়া দরকার, কারণ বিভিন্ন যে নিয়োগ প্রক্রিয়াগুলো এতদিন ধরে আটকে রয়েছে তার নোটিশ কবে দেবে এবং ওবিসির জন্য যে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে না সেটা নিয়ে নোটিফিকেশান কবে জারি করবে রাজ্য সরকার তথা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, সেটাও কিন্তু একটা জানার বিষয়। যদিও আমি এর আগে ভিডিওতে আপডেট দিয়েছি, তো অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন কী কী বিষয় হয়েছে এসএসসি প্রোটেস্টের জন্য, এবং আশা করছি এই এসএসসির জন্য যে প্রোটেস্ট হচ্ছে সেটা যেন দ্রুততার সাথে মিটে যায় এবং সমস্ত শিক্ষার্থীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে নিজস্ব রাজ্যের মধ্যে এক্সাম দিতে পারে। যেখানে এনটিপিসি যেটা রেলওয়ের মতো এক্সামে অনেক কিন্তু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সমস্ত শিক্ষার্থীদেরকে, যারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে হয়তো উড়িষ্যা, কেউ হয়তো কর্ণাটক, কেউ হয়তো কেরালা, এমনও জায়গায় রাজস্থান, কেউ মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, বিভিন্ন জায়গাতে এক্সামে সিট পড়ে যায়, সেখানে তাদের যে মানসিক একটা প্রস্তুতি সেটাও কিন্তু থাকে না। তো অবশ্যই ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখুন সকলেই যে কীভাবে প্রোটেস্ট হয়েছে এবং কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের পাশে রয়েছে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা মহাশয়রা, সেটা একটু দেখার চেষ্টা করুন। তো অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক এবং বাকিদের সাথে শেয়ার করবেন। ওকে, তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, অনুরোধ করে বলছি। लोग वर्दी पहन सके और इनकी वजह से लाखों लोग वर्दी पहनते हैं इस देश में। उनके लिए माध्यम है ये फ्री में बढ़ा के वर्दी पहनाते हैं। ये कोई गलत तरीके से या किसी को ऐसे खरीद के नहीं पहनानी वर्दी। सेंसिबल नहीं है सर, थोड़ा इसको बातचीत करते टाइम आप बोल क्या रहे हैं उस बात के लिए थोड़ा सेंसिबल नहीं है कि भाई हम किससे बात कर रहे हैं। सम्मान के साथ बात करो और जिस बात को करना है उसको प्रोसीड करो, इधर उधर की बातें मत करो।
आप कह रहे हो कि वर्दी नहीं पहन सकते, वर्दी मान लिया सबके बात करने के आना पड़ेगा क्या? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर मरते हो तो बच्चों की बात इतनी सी बात है। नहीं रखवाओ ना फिर उसको। हमें समस्याएं दिखेंगी, हमें विद्यार्थियों के साथ आना पड़ेगा, रोड पे खड़े रहेंगे, घंटों बारिश में भी भीगेंगे, लेकिन अपनी बात रखेंगे। जल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस कोर्स लिया, पढ़ाया, खत्म हो गया। अगर इन्हें दिक्कत है विद्यार्थियों को तो हमें खड़े होना होगा, नहीं तो हम अपने आप को भी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। मजबूरी है हमारी, हमें आना ही होगा। अच्छा, सवाल हो सकता है ठीक है, मैं पहले ही कह रही हूँ क्योंकि सवाल पूछे गए हैं और सवाल पूछना लाजमी है। कहा गया कि अब क्या शिक्षक भी ये चाहते हैं कि राजनीति में कूदना है? उनसे बहुत ऊपर स्तर है हमारा, पहले से ही बहुत आगे है। सुकून की नींद लेते हैं क्योंकि गलत नहीं करा किसी के साथ। ये रात भर डर रहे हैं, इनका इतना बड़ा डर है कि 4 साल बाद जब सरकार बदलेगी तो हम जेल में होंगे। वो डर नहीं है हमारे पास। तो शिक्षकों को राजनीति में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से बढ़िया जिंदगी जी रहे। आदमी क्यों, आपको पता है ये राजनेता इनकी इतनी सपने हैं कि एक फॉर्च्यूनर कमा लें, 4 लड़के पीछे चल दें, बस इतनी है। हमारे संग अभी पूरी भीड़ चलती है और भीड़ चल रही है फॉर्च्यूनर में, पढ़े लिखों की भीड़ चलती है। अच्छा, शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा, आपने कहा कि बकायदा मेरी बातचीत हुई है, मुझे आश्वासन देने की भी बात कही गई। फिर अंदर क्या हुआ, फिर एकदम से कैसे पलट गया ये पूरा गेम? सुबह की बात बता रही है चेयरमैन साहब? सुबह तो एकदम ऐसा ही था। आप देखिए तो मेरे फोन में मैसेज आया कि भाई ठीक है, आप डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और बाहर हम किसी को भेजेंगे, वो आपको अंदर ले जाएगा। बड़ी बात हुई। लेकिन जब वहाँ पे पहुंचे तो पुलिस ने खुद बोला, सब लोग थे, भाई 4 आदमी चलो आप, और अचानक से पुलिस की एक टोली आती है और टीचर्स को भर के ले जाती है। क्या बोला गया आप उनको ऊपर से? आप यहाँ शांतिपूर्वक बात भी नहीं रख सकते, इसका मतलब तो यही हुआ। कोई वहाँ से अपने पैर में चोट लेके भागा है, कोई अपने 10 महीने के बच्चे को, कोई फीमेल टीचर लेकर के गई थी, वो किसी तरह से बच के निकली है। सर ने मुझे फोन किया, जंतर मंतर पहुंचो। किस तरह? सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। ऐसा नहीं है कोई हमें शौक है राजनीति में, किसी टीचर को नहीं जा रहा, हमें सुकून से नींद आती है, बस नींद हमारी तब उड़ती है जब बच्चे की नहीं खराब होती है। तो हम वो उस बात का समाधान लेने के लिए आए हैं, अपनी बात। और अगर कोई टीचर राजनीति में जा रहा है तो राजनीति किसी बाप की बपौती है क्या कि जो टीचर नहीं जा सकता? अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुलायम सिंह जी खुद शिक्षक थे, कल्याण सिंह जी शिक्षक थे, कलाम साहब शिक्षक थे। तो ये लोग, कलाम साहब तो चलो राष्ट्रपति थे, और पता कल्याण सिंह जी शिक्षक थे प्राइमरी के, मुलायम सिंह जी शिक्षक थे। तो ये नहीं आए राजनीति में और कितना अच्छा काम किया। अब क्यों नहीं? इनको पता है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ गए तो इतने सवाल जवाब करेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी ये देश लूटने में बिजी है। अच्छा, लमसम आपकी बातचीत कितनी देर तक चली होगी? अभी तो 1 घंटे मुश्किल है। 1 घंटे आपने बातचीत करी उनसे? हाँ, 1 घंटे। इससे पहले हम लोग कई बार भी बातचीत कर चुके हैं और बातचीत का फायदा कुछ नहीं निकल रहा है, कोई मायने नहीं है उस बातचीत के। वो बोलते हैं मैक्सिमम चीजों में ये हमारे हाथ में नहीं है, सीपीओ का रिजल्ट एमएचए ने लटका रखा है। वही तो कह रहे हैं कि मोदी साहब इस कंपनी के डायरेक्टर हैं भारत के, उनकी जिम्मेदारी नहीं है एक सही प्रोसेस सेट कर दे। कोई चीज कहीं लटक जाती है, कोई चीज कहीं लटक जाती है। जैसे उन्होंने कहा माउस ठीक कर देंगे, वो कहने वाली बात है, कैसे ठीक कर देंगे? पता तक तो है नहीं कि माउस खराब है। उन्होंने कहा पेपर रिपीट पे भी कि हम इसका ध्यान रखेंगे ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है उसमें क्वेश्चन रिपीट होंगे। वो अनटच पेपर है, जैसा मैंने बताया। उन्होंने बोला कि उसको हम ऑडिट नहीं कराते। जैसे मुझे ये पता है कि मुझे आपसे 100 क्वेश्चन बनवाने हैं और मैं आपके 100 क्वेश्चन इससे टेस्ट नहीं करवा सकता, तो मैं फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी देखूंगा ना कि आप 100 के 100 सवाल सही बना पाए। फिर आपने कमजोर लोगों को क्यों रखा हुआ है? जब आप ऑडिट भी नहीं कराएंगे तो फिर तो आपको और सजग रहना चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुँचे, ठीक है, तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है। ठीक है, कुछ टीचर्स एक बस में हैं जिसमें विक्रमजीत सर भी हैं, बाकी लोग हैं। मैं एक बस में हूँ यहाँ पे, हमारे साथ भी और भी टीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, साहिल सर भी हैं यहाँ पे। और
ये सारे हमारे साथ में स्टूडेंट भी है। देखो मेरा सवाल है ना सरकार से सिर्फ इतना सा है कि यार आप इस बात को समझो, आप या तो ये कह दो कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो एक बच्चा होप छोड़ देगा, नहीं करेगा तैयारी हो। लेकिन आप जब ये आश्वासन उसको देते हैं कि देखो हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे वहां पे, तभी तो वो तैयारी करता है, तभी तो हम तैयारी कराते हैं। हमें क्या जरूरत है अपनी कमर तोड़ने की, हमें क्या जरूरत है बच्चे को अपनी कमर तोड़ने की? यार वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो एक अधिकार मिला है और जिसके तहत वो तैयारी कर रहा है। आज इतना बुरा हो रहा है बच्चों के साथ में। मतलब पहली बात तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, बच्चा सेंटर पे पेपर देने जा रहा है तो पेपर रद्द हो जा रहा है, नकलें हो रही हैं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई बात नहीं है, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऐसे कैसे रहेगा आदमी, आप ये बताइए। हमारे ऊपर तुम 100 केस कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हम उतना लड़ लेंगे, वकील रख लेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। बच्चों के साथ में तो अन्याय ना हो ना, कम से कम आप उससे तो आश्वासन दो। एडिक्विटी जैसा घटिया एक वेंडर है, उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, किस भी आप पे सपोर्ट कर रही है। रेलवे में आप कैलेंडर दे देते हैं और उसके बाद में आप पेपर तक नहीं कंडक्ट कराते, वहाँ पता तक नहीं चलता क्या है। महीनों तक, सालों तक जो है कोर्ट में केस लड़ा होता है। इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा। शिक्षक है ये सारे के सारे, इनके ऊपर में हाथ उठाया जा रहा है, तो बच्चों के साथ में क्या होता होगा? मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से हम कभी भी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ने वाली, इस तरीके से कभी विकसित नहीं होने वाले। 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है, 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है और ये तक नहीं बताया जा रहा कि कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पर छोड़ेंगे, क्या होगा। सारे शिक्षक परेशान के साथ में, बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे बैठ कर, आप देख सकते हैं। सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, नहीं करा सकते, दम नहीं है तुम्हारे अंदर में तो बंद कर दो, बंद कर दो, बात खत्म यहाँ पे कि हाँ भाई हम सरकारी भर्ती निकालेंगे नहीं। ये तानाशाह सरकार ऐसे काम कर रही है ना, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। एक तानाशाही कर रहे हैं टीचर्स पे, ये पूरा तानाशाही है। अरे सर, चाइना की तरह तानाशाही करके देश को विकसित भी कर दे तो दुख नहीं होगा। ये तानाशाही करके अपने आप को बड़ा करे और यहाँ पर जो है बच्चों को छोटा करे, तो ये संभव नहीं है। आप इस बात को समझिए। आज मैं सभी देश के युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि तुम जागो, तुम्हारा जमीर जागे। जब तुम यहाँ पढ़ते हो पॉलिटी, तो वहाँ पर सिर्फ उसको याद करने के लिए मत पढ़ो, सिलेबस के लिए मत पढ़ो, उसको अपने दिल में उतारो। और सरकार से बस इतनी बात होगा ना कि आप जो कह रहे थे वहाँ पर कि सांसद में जो है बातें चल रही हैं या एक तरीके से अभी सदन है वहाँ पे, तो हम आप लोगों को नहीं एंट्री करा सकते, हम बात नहीं करा सकते। और हमने चुन करके उनको भेजा है, कोई सांसद है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, हमने उनको चुन करके भेजा है, सिर्फ हमारी बात को रखने के लिए भेजा है। ये पुलिस हमारी सेवा करने के लिए, हमारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं है। दिल बहुत दुखी होता है। और किस तरीके से हम कहें कि हम इस भारत देश में रहते हैं, पानी पीने के लिए पानी नहीं दे रहे हैं ये लोग, और टीचर्स के साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये बताओ बच्चों के साथ में क्या होता होगा। दिल से बता रहा हूँ, उन्हें बहुत दुखी है। लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा बच्चों। ये जो अन्याय आप लोगों के साथ में हो रहा है, इसका हम लोग मिलकर के सारे शिक्षक लड़ाई लड़ेंगे और अब तो मामला बहुत बढ़ेगा। पूरे देश को बस एक कितना कहना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड रहो। हाथ टूट गया सर, संजीव सर का एक हाथ टूट गया, प्रशांत सर के गाल पे बहुत जोर की थप्पड़ मारी है, अमन सर के पैर में लाठी दी गई है, लाठी, एक टीचर है वहाँ पे उनका पैंट फाड़ दिया गया है। सब ठीक है, हमारे साथ कुछ भी कर लें, बट हमारा मुद्दा क्या था, जो बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है उसको खत्म किया जाए। सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम फेयर करो, इतनी तो डिमांड है। और नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन, कितना प्यारा ऑप्शन है, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद एक नोटिस डाल दो, आज से संस्थान बंद होता है, सरकारी नौकरियां खत्म होती है, बच्चा भी अपना कुछ और देखेगा, हम भी कुछ और देखेंगे, काम ही खत्म। जो ये अरेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि इनको भी पढ़ा करके अपने डिपार्टमेंट में भेजा। टीचर पढ़ाना छोड़ देना सर, देश बंद हो जाएगा। अब हमने चलो मांगे भी हमारी आज से सारी खत्म हुई, तुम नोटिस डाल दो, आज से ये जितने संस्थान हैं सरकारी नौकरियों को एग्जाम कराने वाले बंद कर दो। चुपचाप अभी हम घर चले जाएंगे, आप नोटिस डाल दो कि हमारी तरफ से, हमसे बस की नहीं है, हमारे सीधा सीधा बोल दो कि हमारे बस की नहीं है एग्जाम कराना, बंद कर दो, बात ही खत्म हो जाए। हमारी वो बेसिक चीजें जो हमारे मतलब हमारे राइट्स हैं, एक तरीके से यार सेंटर हमसे भरवाए जाते हैं ना, 3 सेंटर पूछे जाते हैं ना कि हमें वो अपने प्रेफरेंस दिया, हमें वहाँ भेज दो। कितने दुखड़े रोए सर, सेंटर पास नहीं आता, वहाँ पहुंचो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। सेंटर तो ऐसे हैं, कुछ सेंटर ऐसे जो तबेले जैसे लग रहे हैं, जहाँ प्रॉपर पहुँचने की जगह नहीं है। आज इस देश के युवा को कितना परेशान किया जा रहा है सर, इसको ऐसा है ना, वो हिटलर की पॉलिसी है, इतना निचोड़ दो कि एक बूंद पानी भी दे तो उसको अमृत लगे। बस आज के युवा के साथ में वही हो रहा है। बात सेंटर की नहीं है, बात बहाली की है, भर्ती प्रक्रिया की है। 100 रुपए का जो माउंट आता है वो तो ज्यादा अच्छा अरेंज नहीं कर पा रहे, आप डेस्कटॉप अच्छे अरेंज नहीं कर पा रहे। हम भी देखेंगे ये वाला फंडा इनका समझ में नहीं आया। लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री करना है, औरों के लिए फॉर्म फ्री करना है,
तुम 3 किलोमीटर जब उसका दूर दे दिया सेंटर, वो 3,000 रुपए लगा के पहुंचा, फिर वो फॉर्म फ्री का मतलब क्या हुआ? तुम इससे बढ़िया 500 रुपए का फॉर्म ले लेते, पास में दे देते, ढंग की उसको फैसिलिटी तो दे देते। पहले फॉर्म का अभी पैसा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर सही ये लेके कराने जा रहे हैं, का अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, क्या धारा लगाएंगे हमें कुछ नहीं पता है और जानना भी नहीं है भाई। शाम तक छोड़े, सुबह तक छोड़े, कल शाम तक छोड़े, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर से आवाज वही होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सीधा सा है मेरे भाई हिसाब किताब यहाँ पर कि अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठेगा और पूरे देश में अब आवाज गूंजेगा, सिर्फ दिल्ली से नहीं, पूरे भारत के हर राज्य में। हर शिक्षक से मेरा आह्वान है, आप जहाँ पर भी आप वहाँ मोर्चा खोलिए। हर बच्चों से आह्वान है कि जहाँ पर भी हम मोर्चा खोलिए, सरकार को बताइए कि वो गलत कर रही है। वो चुनी हुई जो सरकार जो हमने वहाँ पर भेजी है वो हमारे लिए है, हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हमने जो आवाज उठाई है वो एकदम सही उठाई है, बच्चों के हित में उठाई है। वहाँ पर हमने कहीं पर भी कोई भी गलती बात नहीं कही है। तो हमें अरेस्ट करने से मामला शांत नहीं होने वाला है, डिटेन करने से मामला शांत नहीं होने वाला है। सही करना है तो जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधार करिए ताकि बच्चों का भला होगा। जय हिंद, जय भारत।